যারা মায়েরা আছেন আপনারা বুঝতে পারছেন, যারা আমার গুরুজনেরা আছেন তারা বুঝতে পারছেন, একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করবার উস্কানি, একটা ইঙ্গিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমরা বলছি, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির মানুষ বলছি যে লড়াই যদি হয় কোন সম্প্রদায়ের সাথে কোন সম্প্রদায়ের লড়াই হবে না, লড়াই হলে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের লড়াই হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই হবে, তৃণমূল কংগ্রেস বিদায় নেবে, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসবে। আজকে আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, কারণ আমাদের হিন্দুদের হৃদয়ের সম্রাট সম্মানীয় যোগীজি রয়েছেন, তিনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। তবে আমি এতটুকু বলে শেষ করব যে এবারের লড়াই আমাদের যারা সনাতনী হিন্দু আছে তাদের জন্য, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আমাদের লড়াই বাংলায় যাতে হিন্দুদের হোমল্যান্ড থাকে সেই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, আমাদের লড়াই বাংলার গরিমাকে ফেরানোর লড়াই, আমাদের লড়াই কর্মসংস্থান দেবার লড়াই, আমাদের লড়াই মায়েদের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার লড়াই। তাই এই লড়াইয়ে আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের দরকার, আপনাদের আশীর্বাদ আমরা চাই, আপনাদের আশীর্বাদ আমরা চেয়ে নিচ্ছি। আগামী 23 তারিখ সকাল সকাল আপনারা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে আপনারা পদ্মফুল চিহ্ন দেখে আপনারা জয় শ্রীরাম বলে, নিজের ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে, রাধে রাধে বলে, শ্রীকৃষ্ণ বলে, হর হর মহাদেব বলে 3 নম্বরে পদ্মফুলে আপনারা ভোট দেবেন, আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আমরা মাথা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পদ্মফুল ফুটবে, পদ্মফুল ফুটবে, পদ্মফুল ফুটবে, এই আশা রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। হিন্দু 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 হিন্দু। হিরক রানী, হিরক রানী, হিরক রানী মমতা বেগম, মমতা বেগম। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ধন্যবাদ সবাইকে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী মাথাভাঙা বিধানসভা সম্মানীয় শ্রী নিশীথ প্রামাণিক মহাশয়কে। এবারে আমরা যার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় বসে আছি, আমাদের হিন্দুদের সম্রাট, আমাদের হিন্দুদের হৃদয়ে যিনি জায়গায়, উনার স্থান সবসময় আমাদের হৃদয়ে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সম্মানীয় আদিত্যনাথ যোগী মহাশয়। যোগী 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 যোগী, বুলডোজার বাবা জিন্দাবাদ, বুলডোজার বাবা জিন্দাবাদ। যোগী 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 যোগী। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के कोच बिहार जिला के अध्यक्ष श्री अभिजीत बर्मन जी, भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री, माथाभांगा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री निशीथ प्रामाणिक जी, शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
श्रीमती सावित्री बर्मन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष से अनिल मालाकार जी, निवर्तमान विधायक माथा भांगा भाई सुशील बर्मन जी, शीतल कुची के निवर्तमान विधायक वारेन चे बर्मन जी, जिला महासचिव मनोज घोष जी, जिला उपाध्यक्ष प्रताप सरकार जी, विधानसभा प्रभारी कृष्ण कुमार साहा राय जी, जिला प्रभारी राम सूरत कुमार जी, विधानसभा संयोजक अरविंद विश्वास जी, श्री जितेंद्र चौधरी बर्मन जी, गुरु प्रसाद बर्मन जी, मुरारी राय जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षगण श्री रामेन बर्मन जी, मृदुल डे जी, वीरेंद्र राय जी, विमल बर्मन जी, प्रकाश दास जी, कोच बिहार जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा श्री प्रशांत बर्मन जी, भारी संख्या में आज के इस चुनावी विधानसभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता और उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उत्तर बिहार के, उत्तर बंगाल के कोच बिहार जनपद के अंदर आप सभी से संवाद बनाने और इस माटी को नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस पावन धरा को, जिसने भारत की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा करने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के बलिदान की एक नई परंपरा खड़ी की है, ऐसी पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये पावन धरा जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वाभाविक रूप से भारत की आस्था, भारत की लोक कला, संस्कृति और लोक गीतों की वीरों के शौर्य और परिश्रमी अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि के रूप में कोच बिहार ने भारत की धरती पर अपनी एक पहचान बनाई है और माथा भांगा स्वाभाविक रूप से उसकी भाग्य की रेखा है, भाग्य की रेखा। यहां की अपनी विशिष्ट लोक कला, राजवंशी भाषा की मिठास, भव्य पारंपरिक लोक वेशभूषा और आत्मा को स्पर्श करने वाली भवैया लोक गीतों के माध्यम से आज यहां की महान राजवंशी समुदाय पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाता है। बहनों और भाइयों, ठाकुर पंचानन वर्मा, वीर चिलाराय,
पद्मश्री गीता राय बर्मन, इन सब की पावन ये धरा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उसको नमन न करना चाहता होगा। मुझे अभी एक बहन मिली यहां पे, निषेध प्रमाणिक जी ने मुझे बताया कि इन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे अच्छा लगा। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में, भारत की संस्कृति को एक नई दिशा देने वाली धरती के रूप में जानी जाती रही है। याद करिए, यही तो धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया। यही धरती है जिसने भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को दिया, और स्वामी प्रणवानंद जी की दीक्षा गोरखपुर में हमारे मठ में आज से 114 वर्ष पहले हुई थी। 114 वर्ष पहले बंगाल से हम लोगों का रिश्ता किस रूप में है आप देख सकते हैं। ये धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की धरती का तेज है। याद करिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने भारत की आजादी का अमर मंत्र वंदे मातरम भारत को दिया था, ये वही धरती है जिसने भारत को भारत का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से दिया। साहित्य के लिए भारत का पहला नोबेल प्राइज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को प्राप्त हुआ था। बंगाल के कारण प्राप्त हुआ था, बंगाल की माटी के कारण प्राप्त हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या नारा था, क्या आह्वान था? कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर के। बहनों और भाइयों, भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती की देन है। याद करिए, यही बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की अराजकता, तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके। बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमें ज्ञान, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया, याद करना, जिस धरती ने भारत को संस्कृति, सभ्यता और भारत की आजादी के लिए एक गौरवशाली परंपरा दी, भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली ऐसी पावन धरा, याद करिए, यही बंगाल रही है, यही बंगाल है। बहनों और भाइयों, ये तो हुई संस्कृति की बात। बंगाल देश के अंदर स्वतंत्र भारत में
भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, ग्रोथ इंजन। सबसे ज्यादा उद्योग थे, सबसे ज्यादा उद्योग भारत की इकोनॉमी में 1/3 भाग बंगाल का हुआ करता था। भारत की इकोनॉमी के साथ साथ रोजगार देने का माध्यम भी युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बंगाल था। क्या हो गया? कल आपने संसद में देखा होगा, कल आपने संसद का वह दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक, इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा? और यही तो कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मां, माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे तब पड़े हैं, मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति के नागरिकों तक पहुंचने में नहीं पहुंचता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं, धान के उत्पादन में गिरावट आई है,
मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है। यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। बहनों और भाइयों, बंगाल के अंदर आज आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं। दुर्गा पूजा के पहले उपद्रव हो जाता है। यहां की गवर्नमेंट दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। गौ हत्या करवाती है। यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है। आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी 2017 के पहले। यही स्थिति हुआ करती थी। वहां कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। किसी गरीब को हक नहीं मिलता था। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी। वहां पर भी कोई जय श्री राम बोलता था तो टीएमसी की ही पार्टनर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां हमला करवाती थी, पुलिस से पिटवाती थी। लगातार अराजकता थी। सड़कों पर जुमे के दिन पूरी सड़क जाम हो जाती थी। आवागमन ठप हो जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर के मस्जिदों की आवाज से लोग परेशान रहते थे। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त यूपी है। और कोई माफिया और कोई दंगाई कभी दिखता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली को तोड़ करके एक्सप्रेसवे बना देता है। एक्सप्रेसवे प्रदेश बना देता है उसको। जितने माफिया हैं, इन माफिया की संपत्ति को हमने कब्जे में लेकर के वहां के गरीबों के आवास बना दिए हैं। वहां शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंध है। अरे तभी हो सकता है जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार इस बात की गारंटी देने के लिए आपको आ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बंगाल के पास ये अंतिम अवसर है। बंगाल के पास अंतिम अवसर है। और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा। हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा। और इसके लिए
डबल इंजन सरकार आपके पास है। डबल इंजन सरकार यह करके दिखाती है। हमने तो किया है यूपी में। आप देखो ना, 2017 के पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी, डंडे चलते थे, और अब दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। क्या ये लोग रोक पाए? क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या इन्होंने राम मंदिर बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। और तो जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर जब कावड़ यात्रा निकलती है हर हर महादेव का करते हुए, एक एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग होते हैं शामिल। 4 करोड़ लोग एक एक कावड़ यात्रा में, अनेक कावड़ यात्रा निकलती है। गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच, प्रयागराज से काशी के बीच, अयोध्या से गोरखपुर के बीच, बरेली के अंदर, और हर कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की पूरी टोली करोड़ों की संख्या में निकलती है। 2017 के पहले नहीं निकलने देते थे ये सपा, कांग्रेस, टीएमसी नहीं निकलने देती थी। कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी, दंगे हो जाएंगे। मैं जब 17 में आया था तब भी इन्होंने कहा था नहीं, इसको हो चलने देना चाहिए। मैंने कहा देखो, दुर्गा पूजा भी होगी, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, और मैं यहां के माध्यम से ममता दीदी को ही बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। मैं कहूंगा बहन और भाइयों, हमारे यहां पे दोनों प्रत्याशी यहां पर आए हैं। माता भांगा विधानसभा से हमारे निशीथ प्रमाणिक आए हैं। भारत सरकार में इन्होंने गृह राज्य के रूप में काम किया था।
याद करिए निषिद्ध प्रामाणिक, जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो रही थी और नक्सलवाद समाप्त हो रहा था, उस समय आदरणीय अमित शाह जी के साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में निषिद्ध प्रामाणिक थे। और आज सौभाग्य है आपका कि वे इस मातावांगा से बीजेपी के उम्मीदवार बन करके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। निषिद्ध जी हैं और शीतलकुची विधानसभा से सावित्री बर्मन जी हैं। इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आशीर्वाद देंगे। इधर पीछे, इधर सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो, घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, इन दोनों का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे साथ मैं बोलूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं बोलूंगा पलटानो दोरकार, आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा औंधकार हटबे, मैं कहूंगा औंधकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। और मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। औंधकार, औंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोगी